Okay, students, now I am going to explain about the author. The author of this story is Ruskin Bond. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh. Kasauli is the name of place and Himachal Pradesh is the name of state. In 1934, 1934 में रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ. He was brought up at different places that included जामनगर, देहरादून एंड शिमला. इनका पालन पोषण लगभग डिफरेंट जगहों पर हुआ. जामनगर में भी ये रहे, देहरादून एंड शिमला. ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल. इनका पहला जो उपन्यास था रूम ऑन द रूफ व्हेन ही वाज जस्ट 17 ईयर्स. 17 साल की अवस्था में ये सबसे पहला नोवेल इन्होंने लिखा. ऑल्ड फॉर विच ही रिसीव्ड द, और ये जो नोवेल जो था ये पुराना था जिसके चलते इनको इनाम दिया गया, द जॉन लेवेलिन राइस मेमोरियल प्राइज इन 1957. 1957 में इनको एक मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया गया. रस्किन बॉन्ड हैज नाउ बीन राइटिंग फॉर मोर देन 6 डिकेड्स. अब ये लगभग मतलब 60 वर्षों से, डिकेट्स मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो लगभग 6 into 10 equal to 60. 60 वर्षों से इन्होंने अपना राइटिंग्स लिखते रहे. हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इनका जो छोटी छोटी कहानियां हैं. फर्स्ट स्टोरी द नाइट ट्रेन एट दियोली, पहला इनका लेख है वो है नाइट ट्रेन एट दियोली. टाइम स्टॉप एट शामली सेकेंड, एंड आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा थर्ड आर वर्थ रीडिंग. ये सब मतलब इनका मुख्य कृति है. रिप्लेट विथ अनएज्यूमिंग ह्यूमर, और ये विभिन्न प्रकार की कहानियाँ भी लिखे जो हास्यप्रद रहता था. फुल ऑफ ह्यूमर एंड क्वाइट विजडम, एंड फुल ऑफ विजडम मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी. हिज स्टोरीज मैनिफेस्ट अ डीप लव, इनका जो कहानी होता था वो प्रेम से भरा हुआ रहता था. देयर वाज लव इन ऑल द स्टोरीज व्हिच हैज बीन रिटन बाय राइटर. मैनिफेस्ट अ डीप लव फॉर नेचर एंड द पीपल. ऑल द पीपल likes to read his story because he wrote many stories that were so interesting. Okay, thank you. Now I will explain your story paragraph wise, and I will give meaning of the difficult word. Thank you. Good morning students, welcome to you DAV Public School Bhamarmal. Today I will start your book English literature, and in this book I will start first lesson. The name of that lesson is Monkey Trouble. As you can see on the picture, this is a famous lesson by Ruskin Bond. Okay, now I am going to continue the story. The main character of this story is Tutu. You will read this story in class 9th also. Before starting this story, here is just some question answer. Whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. Pick up appropriate qualities from the box given and write them opposite the name of the animals or bird. Here you will write opposite words. I will give the solution after completing this chapter, and if you will do according to your choice, you will find from the help box. Second question, so why do you think streets entertainer prefer monkey to other household pets like cats and dogs? Discuss with your friends. आपको क्यों लगता है जो इंटरटेनर जो है स्ट्रीट में वो ज़्यादा प्रेफर करता है बंदर को, monkey so prefer than other pet animals.
because the behavior of monkey is so good. And now read the following story and enjoy the mischiefs of the troublesome monkey. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. The man had 3 monkeys. Tutu was the smallest but the most mischievous. She was tied up most of the time. The little monkey looked so miserable with a collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. Grandfather had a weakness for keeping unusual pets. It was the habit that I, at the age of 8 or 9, used to encourage. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. 10 रुपये में दादाजी उस बंदर को खरीदे. द मैन हैड 3 monkeys. जो आदमी के पास 3 बंदर थे. टूटू वाज द स्मॉलेस्ट. जो बंदर जो था सबसे छोटा था, बट द मोस्ट मिस्chievous, लेकिन बहुत शरारती था. शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम. हमेशा उसे बांध करके रखा जाता था. टाइड मतलब बांधना. द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल. और जो छोटा जो बंदर था वो मिजरेबल था. विथ ए कॉलर. ही हैड अ कॉलर ऑन हर नेक and chain also. That grandfather decided it would be much happier. That is why grandfather decided to buy Tutu as a pet animal, and will take it and keep in house with all the family. Grandfather had a weakness for keeping unusual pets, and he had great weakness to keep all kinds of the pets like monkeys, dogs, cat, etc. It was the habit that I, at the age of 8 or 9, used to encourage. मतलब 8 या 9 साल के बाद उनको encourage भी होता था. लोग उत्साहित करते थे रखने के लिए. encourage मतलब उत्साहित करना. All of you also read this lesson in class 9th. There the name of the lesson will be Adventures of Toto. Here the name of monkey is Tutu, but in that story, there the name of that monkey will be Toto. Grandmother at first objected to having a monkey in the house. You have enough pet as it is, she said, referring to grandfather's got several white mice and a small tortoise. Grandmother यानी दादी हमेशा ऑब्जेक्ट करती थी. ऑब्जेक्ट मतलब she is not agree with the behavior of grandfather, because she didn't like to keep any kinds of pet like a monkey or other, like goat, several white mice मतलब चूहा, and a small tortoise कछुआ. So she was not agree to keep monkey as a pet. But I don't have any, I said. You are wicked enough for 2 monkeys. One boy in the house is all I can take. But I don't have any, I said. Grandfather बोले कि मेरे पास कोई मतलब बंदर नहीं है ना. इस बात को सुनकर के दादी बोली, यू आर विक्ड एनफ. तुम आप मतलब महा मूर्ख हो. फॉर 2 monkeys, 1 boy in the house is all I can take. मेरे घर में एक लड़का है जो कि his behavior is like monkey. But Tutu is not a boy. लेकिन टूटू जो है वो बॉय नहीं है ना. she is female, said grandfather triumphantly, मतलब जीतते हुए. This is a little girl monkey. जो मैं खरीदा हूँ वह बंदरिया है, नोट बंदर. Grandmother gave in. She had always wanted a little girl in the house. Now grandmother was agree to keep that monkey which has been bought by the grandfather. She believed girls were less troublesome. मतलब उनका मानना था कि जो बंदरिया जो है ज़्यादा बदमाश, मतलब ज़्यादा मिस्chievous नहीं होगी. troublesome मतलब परेशानी या कोलाहल करने वाला. that was Tutu was to prove her wrong. और इनको लग रहा था कि जो टूटू जो है वैसा मतलब बंदरिया जो है नहीं करेगी. सी वाज ए प्रेटी लिटिल मंकी. और एक्चुअली टूटू वाज ए प्रेटी लिटिल मंकी ना, सुंदर थी.
Her bright eyes sparkled with mischiefs beneath. Her bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and her teeth, which were pearly white, were often revealed in a grin that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of the grandfather's pet python in the house at Lucknow. But this was Dehra, my grandparents' house, and aunts and uncles had to put up with our pets. बंदरिया का जो आंखें थे वो चमक रहे थे, आईज स्पार्कल्ड थे विथ मिस्चिफ बीनीथ, और देखने से लग रहा था कि मतलब शरारती थी. डीप सेट आईब्रो जो था डीप था. एंड हर टीथ विच वेयर पर्ली वाइट, और जो दांत थे वो सुंदर दिख रहे थे, पर्ली वाइट कलर का. वेयर ऑफन रिवील्ड इन ए ग्रीन दैट फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ आंट रूबी. मतलब दांत को देख करके आंट रूबी भी डर जाती थी. फ्राइटेंड मतलब डराना. Whose nerve had already suffered from the presence of grandfather's pet python. Python means अजगर. In the house at Lucknow. एक और जो पेट एनिमल जो था वो पाइथन था, और यह घर में रखा जाता था एट लखनऊ. लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ यूपी. बट दिस वाज देहरा, माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स. लेकिन उससे कोई किसी को परेशानी नहीं था ना ये. बट दिस वाज देहरा, यहाँ जो लोग रह रहे थे वो देहरा. दिस इज अ टाउन, माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और ये ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के घर को कहा जाता है. एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स, और यहाँ सब लोग को अच्छा लगता था. नाउ यू हैव सेकेंड कैरेक्टर आंट रूबी. The main character of this story is Tutu, and second one is Aunt Ruby. One day Aunt Ruby took us all by surprise. She announced that she had become engaged. चाची बोली कि मेरा सगाई हो गया है ना. एंगेज्ड मतलब सगाई होना, अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना. We had always thought that Aunt Ruby would never marry. सब लोग को लग रहा था कि आंट रूबी जो है वो शादी कभी नहीं करेगी. She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa. और उनका एंगेजमेंट जो हुआ था ना, देयर वाज अरेंजमेंट विथ रॉकी फर्नांडीज. ही इज अ सिंपल टीचर फ्रॉम गोवा. गोवा में वो टीचर के रूप में काम कर रहे थे ना. तो आंट रूबी का शादी जो होने वाला था वो रॉकी फर्नांडीज के साथ होने वाला था. यानी कि थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज रॉकी. फर्स्ट टू सेकेंड आंट रूबी, एंड थर्ड रॉकी. रॉकी वाज अ टॉल, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts. ये अंकल जो आते थे वो हमेशा साथ में मतलब गुड नेचर के थे. वो हमेशा घर में आते थे और साथ में चॉकलेट्स भी लाते थे. He brought chocolates, cashew nut, of which he seemed to have an unlimited supply. मतलब इस तरह से अनलिमिटेड अनेकों चीज़ सप्लाई करते थे, मतलब देते थे. He also taught me several marching songs. Naturally, I approved of Rocky Aunt Ruby on my admiration for having made such a wise choice. मतलब मेरा बिहेवियर से सब लोग खुश थे ना. आई अप्रूव्ड मतलब साबित करना, मतलब दिखावा देना. ऑफ रॉकी आंट रूबी ऑन माई एडमाइरेशन, और आंट रूबी भी मतलब बहुत खुश थे ना उनके बिहेवियर से, और बहुत एडमायर करते थे. एडमायरेशन मतलब प्रशंसा. for having made such a wise choice. One day I overheard them talking of going to बाजार. एक दिन ऐसा हुआ ना कि वे लोग बात कर रहे थे. they were talking that today I will go to market. मार्केट को बाजार भी बोला जाता है. to buy an engagement ring, मतलब सगाई में अंगूठी देने के लिए ना. एंगेजमेंट मतलब सगाई, रिंग मतलब अंगूठी. I decided I would go along too, और मैं भी फैसला किया कि मैं भी जाऊँगा. I will also go. But as Aunt Ruby had made it clear, लेकिन जब चाची ने अनाउंसमेंट की बोली ना, not went me around, I decided that I had better follow
At a discreet distance, Tutu, becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow me, but as I had not invited her along, she too decided to keep out of sight. Discreet, here is the hard word. Discreet means that does not attract attention. मतलब ऐसा बिहेवियर जिससे कोई मतलब ध्यान नहीं देता हो. अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, नोट अट्रैक्ट मतलब ध्यान नहीं देना, अटेंशन मतलब ध्यान. एंड मोर वर्ड मीनिंग. स्क्विल मीन्स लॉन्ग लाउड, मतलब तेज आवाज़ में चिल्लाना. एडोर्न मतलब डेकोरेट सजाना. साउंटरिंग मतलब वॉकिंग इन ए स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर, धीरे धीरे मतलब चलना. दैट इज नोन एज साउंटरिंग. Tutu becoming aware that a mission of some importance was underway. Tutu को लगा कि this was a great mission. I will have to go to market with both the person, Aunt Ruby and Uncle Rocky के साथ. Decided to follow me, but as I had not invited her. लेकिन ये लोग उसको बुलाया नहीं थे, इनवाइट नहीं था. There was no invitation for Tutu. She too decided to keep out of sight. इसीलिए टूटू को भी लगा, बंदरिया को, कि मैं मतलब इन लोग को साथ साथ मैं नहीं जाऊंगी. आई विल गो अलोंग. वंस इन द क्राउडेड बाजार आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू आंट रूबी. एक समय मतलब ऐसा सीन हुआ कि क्राउडेड बाजार में ना, क्राउडेड जो मार्केट था, आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज मतलब एकदम नज़दीक बंदरिया चली गई थी. टू आंट रूबी मतलब आंट रूबी के पास. एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड मतलब बिना देखे हुए, छुप छुप करके. I waited until they had settled down in a large jewelry shop. और वो इंतज़ार कर रही थी कि जब तक ये ना both of them were entered into ज्वेलरी शॉप. वे लोग जब ज्वेलरी शॉप में चले जाएंगे तब मैं जाऊंगी. ऐसा मतलब बंदरिया का बिहेवियर था. इन ए लार्ज ज्वेलरी शॉप मतलब जहाँ आभूषण बेचे जाते हैं. बिफोर साउंटरिंग पास्ट एंड स्पॉटिंग देम एज दो बाई एक्सीडेंट. और ये धीरे धीरे बंदरिया जा रही थी साउंटरिंग करते हुए इन ए स्लोली मैनर. पास्ट मतलब आगे बढ़ना, एंड स्पॉटिंग मतलब जांच पड़ताल करना. एज दो बाई एक्सीडेंट. आंट रूबी वाज नॉट टू प्लीज्ड एट सीइंग मी. क्योंकि चाची जब हमको देखी तो वो शी वाज नॉट सो हैप्पी आफ्टर सीइंग माई बिहेवियर. बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट. लेकिन जो रॉकी अंकल थे वो हमको देखे, ही सॉ मी एंड कॉल्ड आउट, और हमको बुलाए. कम एंड जॉइंड अस, हेल्प योर आंट चूज ए ब्यूटीफुल रिंग. और बोले कि कम हियर एंड ज्वाइन अस एंड हेल्प बोथ ऑफ मी टू परचेज अ ब्यूटीफुल रिंग. मतलब अंगूठी को खरीदने में तुम भी हाथ बढ़ाओ. द होल थिंग सीम टू बी अ वेस्ट ऑफ good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. मतलब बंदरिया को लगा कि ये जो इंसिडेंट हो रहा था, the whole incident was going to be wasting of the money. लग रहा था कि यहाँ लोग आए हैं और पैसा सिर्फ बर्बाद करेंगे. But I did not say so. लेकिन मैं कुछ नहीं बोली. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. आंट रूबी देख करके मतलब ईर्ष्या करने लगी ना. शी वाज सो एंगर आफ्टर वाचिंग द बिहेवियर ऑफ टूटू. while the jeweler and Aunt Ruby were shifting through the diamond rings. जब वे लोग दोनों देख रहे थे डायमंड रिंग्स को, मतलब डायमंड्स मीन्स हीरा, रिंग मतलब अंगूठी. टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन. टूटू जो है अंदर घुस गया ना, विदाउट सीइंग एनीवन मतलब बिना किसी को देखे हुए. अ लिटिल सेक्यूल ऑफ डिलाइट वाज द फर्स्ट साइन शी गेव हर प्रेजेंस. मतलब सबसे पहले लोग वो चिल्लाती है बंदरिया. स्क्विल मतलब आवाज़ करना ना, साउंड ऑफ ए मंकी. जब वो आवाज़ लगाती है तो सब लोग डिलाइट होते हैं. डिलाइट मतलब खुश होना. वाई द फर्स्ट साइन शी गेव ऑफ हर प्रेजेंस. एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन ए प्रेटी नेकलेस. सब लोग देख रहे थे कि शी हैड अ डायमंड नेकलेस. वो जो है अपने पास एक हीरा का हार रखी थी अपने पास में. प्रेटी नेकलेस मतलब सुंदर, नेकलेस मतलब आभूषण, गले का हार. एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स आई आस्क्ड. मतलब मैं
मैं यहाँ रॉकी मतलब पूछे, देन लुक लाइक दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी। रॉकी बोले कि ये जो स्टोन्स हैं ना वो मोती के जैसे लग रहे हैं। जब आंट रूबी पूछी ना, आंट रूबी पूछी कि एंड व्हाट आर दीज स्टोन्स, ये जो स्टोन्स हैं वे क्या हैं। दे लुक लाइक पर्ल्स, ये जो हैं वो मोती के जैसे दिख रहे हैं, सेड रॉकी। रॉकी अंकल बोले दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब ऑफ देम। मतलब झपटते हुए ना हाथ में लेते हुए बोला कि ये जो हैं ये मोती हैं। मेकिंग अ ग्रैब ऑफ देम। इट इज दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड आंट रूबी। आई न्यू द जॉब वुड वाई वुड ब्रिंग हर हियर। इट इज दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड आंट रूबी। जब आंट रूबी बंदरिया को देखी तो वो डर गई ना। आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर, और बोली कि मुझे लगता है कि उस लड़के के साथ ये बंदरिया यहाँ आई है ना। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडोर्निंग टूटूज नेक्स। अब जो बंदरिया जो थी उस नेकलेस को मतलब सजा करके और पहनी हुई थी ना। ही हैड डायमंड नेकलेस इन हर नेक, मतलब गर्दन में देखा गया तो नेकलेस को पहनी हुई थी। एडोर्न मतलब सजाना। I thought she looked rather nice in them, but she gave us no time to admire the effect. Springing out of the reach, Tutu dodged around Rocky. लोग देख रहे थे बंदरिया को कि उससे मैं लूँ, लेकिन मतलब इन नो टाइम सी स्प्रिंग्ड आउट। स्प्रिंग्ड आउट मतलब कूदना, वो कूदी मतलब ऑफ आवर रीच। टू डॉज्ड अराउंड रॉकी, और रॉकी के चारों तरफ इधर से उधर नाचने लगी बंदरिया। स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स, और दो पैरों के बीच से वो भाग निकलती है स्लिप करके। एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड, और बाहर निकल जाती है जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला सड़क। आई रन आफ्टर हर। अब रॉकी भी पीछे से दौड़े लेने के लिए। to take the necklace, to snatch the necklace from the neck, shouting to her to stop, but she was not listening. और ये लोग बहुत चिल्ला भी रहे थे मतलब रुकने के लिए कि रुको ना, क्योंकि वो जो नेकलेस जो था डायमंड का था, and that was so costly. So children's the story is on the turning point that we are here at a point that the necklace is इन द हैंड ऑफ टूटू ना, एंड उसकी गर्दन में ये जो नेकलेस है वहाँ है। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट लेसन दैट व्हाट विल बी हैपेंड विद द डायमंड। डायमंड के साथ क्या होता है, क्या बंदरिया उसको अपने खुद पहनती है या वो फेंक देती है। ही थ्रू अवे द नेकलेस इन अदर प्लेस, और शी विल यूज इट एज ए ornament. What will be happening in the next story, I will explain. Okay, now I am going to continue your story which has been remain in the midway. The story was that the diamond necklace was in the hand of in the neck of Tutu, and she was running on the roadway, and all the people were following her to catch, यानी कि सब लोग उसको पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रन आफ्टर अस। अब जिसका जो दुकानदार था वो भी पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग टू कैच टू फाइंड द नेकलेस। सो डिड रॉकी अंकल थे। सो डिड सेवरल बाई स्टैंडर, और जो आसपास में खड़े थे ना, ऑल द पीपल वी आर फॉलोइंग हर हु हैड सीन द इंसिडेंट। मतलब जो लोग भी देखे उस इंसिडेंट को, सब लोग उसमें शामिल हो गए थे। एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, और जो लोग नहीं भी जानते थे वे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट हो गए। ज्वाइन टू इन चेस मतलब पीछा करना, टू कैच पकड़ना। एज ग्रैंड फादर यूज टू से इन ए क्राउड एवरी वन प्लेज फॉलो द लीडर even when they don't know who is leading. No, everyone knew that the leader was Tutu. Only the front runners could see her. अब ऐसा वहाँ पर इंसिडेंट था कि किसी को मालूम नहीं था कि who is the leader. टूटू था और some other person, they don't know. लेकिन सब एक दूसरे से मतलब पीछे पीछे दौड़ रहे थे।
नॉट एवरी वन न्यू दैट द लीडर वाज टूटू। किसी को मतलब पता भी नहीं था कि टूटू जो बंदरिया है वो लीडर है। आगे आगे वो दौड़ रही है, सब लोग पीछा कर रहे हैं। यानी कि द सीन वाज रियली ह्यूमरस। मतलब आफ्टर वाचिंग द सीन एवरी वन विल बिगिन टू लाफ, मतलब सब लोग हंसने लगेंगे इस सीन को देख करके। सी ट्राइड टू मेक हर एस्केप स्पीडियर बाय लीपिंग ऑन टू द बैक ऑफ द पासिंग स्कूटरीज। अब बंदरिया जो है मतलब तेजी से दौड़ते हुए कूद जाती है और एक जो स्कूटर पास करता है चलाते हुए ना, उसके ऊपर बैठ जाती है। द स्कूटर swerved into a fruit stall and came to stand still under a heap of the banana। अब स्कूटर पर जब बंदरिया बैठती है तो वो लड़खड़ाते हुए मतलब इधर से उधर तलमड़ाते हुए ना, यानी कि स्कूटरिस्ट जो है वो बैलेंस खो देता है ना, संभाल नहीं पाता है स्कूटर को, और वह जा कर के टकरा जाता है एक जहाँ बनाना लोग बेचते रहते हैं। बनाना मतलब केला, हिप मतलब ढेर, उस ढेर पर जा करके और वो स्कूटरिस्ट और स्कूटर दोनों, चलाने वाला भी और स्कूटर दोनों गिर जाते हैं वहाँ। वाइल द स्कूटरिस्ट फाउंड हिमसेल्फ इन द आर्म ऑफ इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर। जो एक फ्रूट सेलर जो फल जो बेच रहा था, वो उसके बाह में जा करके ये जो है स्कूटर चलाने वाला वो गिर जाता है। इंडिग्नेंट मतलब हियर यू विल गेट द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, एक्सप्रेसिंग एंगर एंड सरप्राइज। यानी कि वो भी बहुत नाराज था, एंगर था कि अचानक जो है बंदरिया आ जाती है स्कूटर पर, जिसके चलते वह लड़खड़ा करके और फ्रूट सेलर के पास जा करके गिर जाता है। टूटू पील्ड ए बनाना। अब टूटू जो है सीटू का बनाना एंड सी पील्ड इट, वो छिलती है उसको, एंड एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन। और मतलब दौड़ने से पहले वो उसको छील करके खाती है केला को। फ्रॉम एन ऑनिंग सी मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वाशरमैन डंकी। और सामने जो ये ऑनिंग कहते हैं, जो सामने लगा हुआ रहता है एक टेंट के रूप में, अ सीट ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक्स आउटसाइड शॉप्स टू कीप सन एंड रेन ऑफ। मतलब धूप या गर्मी से बचने के लिए ना, या वर्षा से बचने के लिए एक सामने टेंट लगा होता है, उसको या ऑनिंग कहते हैं। तो सी मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन ए वाशरमैन्स डंकी। अब वाशरमैन जो धोबी जो था ना, उसके डंकी पर जाकर के बैठ जाती है। डंकी मतलब गधा। यानी कि द सीन वाज सो रियली ह्यूमरस। द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रश डाउन द रोड। अब डंकी जो है जैसे ही उस पर बंदरिया बैठती है वो भी पैनिक्ड हो जाता है। पैनिक्ड मतलब घबरा जाना ना। एंड रश डाउन द रोड, और वह मतलब गधा जो है वो भी सड़क पर दौड़ने लगता है। वाइल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाई, और जो धोने के लिए जो कपड़े रखे गए थे उस पर ना, गधे के ऊपर जो था वो भी नीचे गिर जाता है। फेल बाई द वे साइड द वाशरमैन ज्वाइंड इन द चेस। और वो जो धोबी जो था कपड़ा धोने वाला वो भी चेस करने लगता है। सी आल्सो बिगन टू चेस द टूटू। चिल्ड्रंस ऑन देयर वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट here was something better to do than attend the class. All the children were going to school, they also decided to join in the chess. उन लोग को भी लगा कि नहीं, अब बेहतर होगा कि हम लोग इस चेस में टूटू को पकड़ें, बंदरिया के साथ रहें ना। विथ shouts of glee means here happy, they soon overtook their पैंटिंग गिलर्स। और जो बड़े लोग जो थे उसमें भी ये छोटे छोटे बच्चे जुड़ गए हंसते हुए। गिली मतलब हैप्पी, हंसते हुए, पेंटिंग मतलब हाँफते हुए जो लोग दौड़ रहे थे, यानी कि इसमें सब लोग शामिल हो गए ना। द सीन वाज सो ह्यूमरस। रॉकी ही वाज आल्सो चेसिंग आंट रूबी, सी वाज आल्सो चेसिंग ज्वेलर्स यानी शॉपकीपर, वाशरमैन, फ्रूट सेलर, यानी कि ऑल द पीपल्स वी आर चेसिंग टू कैच द टूटू को पकड़ने के लिए सब लोग मतलब उसका पीछा कर रहे थे। एज यू मे सी ऑन द पिक्चर ना, आप देख रहे हैं कि बंदरिया जो है गधे पर बैठी हुई है और सब लोग इसको मतलब पीछा कर रहे हैं। यानी कि स्कूल बॉयज, स्कूल गर्ल्स, आंट रूबी, रॉकी, शॉपकीपर, फ्रूट सेलर,
everywhere. Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house. अब टूटू जो है फाइनली सी लेफ्ट द बाजार, मतलब मार्केट को छोड़ देता है, मतलब मार्केट से वहाँ से निकल जाती है. एंड टूक अ रोड लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस, और वह घर की ओर चल देती है. बट नोइंग दैट सी वुड बी काउट एंड लॉक्ड अप, लेकिन उसे मालूम हो जाता है कि लोग हमको पकड़ लेंगे और बंद कर देंगे, लॉक्ड अप कर देंगे. वंस सी गोट होम, अगर वह घर में चली जाएगी तो. सी डिसाइडेड टू एंड द चेस बाय राइडिंग हर सेल्फ ऑफ ए नेकलेस. रीडिंग हर सेल्फ ऑफ द नेकलेस, मतलब लगा कि अगर मैं नेकलेस को कहीं फेंक नहीं दूँ तो लोग हमको पकड़ लेंगे और बंद कर देंगे. तो उसको लगा कि मुझे रीडिंग होना चाहिए. रीडिंग मतलब छुटकारा पाना, मतलब फेंक देना. फ्री मतलब रीडिंग मतलब फ्रीइंग, मतलब आज़ादी, मुक्ति होना. चेस बाय रीडिंग हर सेल्फ ऑफ द नेकलेस डेफ्टली. द मीनिंग ऑफ डेफ्टली इज क्विकली एंड स्किलफुली. डेफ्टली रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक, वो तेजी से गले का हार निकालती है. सी प्लंग्ड इट इन द स्मॉल कैनल, और जो कैनल मतलब नहर में उसको फेंक देती है. दैट रन डाउन द रोड, जो कि सड़क के किनारे से बहता हुआ एक नहर था, उसमें वो फेंक देती है नेकलेस को. The jewelers, with a cry of anguish, plunged into the canal. So did Rocky, so did I, so did several other people, both adults and children. It was to be a treasure hunt. अब द ज्वेलर जो मतलब आभूषण जो बेच रहा था, विथ ए क्राई ऑफ एंग्विश. एंग्विश यू कैन सी हियर द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. एंग्विश मीन्स सफरिंग काउज्ड बाय पेन और ओरी. उसको भी मतलब सफरिंग हो रहा था, दुख हो रहा था कि उसका जो डायमंड नेकलेस जो था ना, वो बंदरिया फेंक दी थी कैनल में, इसीलिए वो एंग्विश था. प्लंग्ड मतलब फेल सडनली, मतलब डाल देना पानी में, डुबो देना. फेल सडनली फॉरवर्ड और डाउनवर्ड. स्टीयरिंग मिक्सिंग एंड मूविंग, मतलब चलाना, इधर से उधर ढूंढना. दैट इज नोन एज स्टीयरिंग. ओके. प्लाइंड इन टू द कैनल, सो डिड रॉकी. अब सब लोग उस कैनल में मतलब नेकलेस को ढूंढने के लिए ना, फॉर सर्चिंग नेकलेस, ऑल द पीपल वेयर प्लाइंड इन टू द कैनल. सो डिड आई, सो डिड सेवरल अदर्स. रॉकी अंकल गए, आंट रूबी, एवरीवेयर, बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. इट वाज टू बी अ ट्रेजर हंट. अब सबको लग रहा था कि यहाँ मतलब खजाना को ढूंढा जा रहा है. ट्रेजर यू में से दैट डायमंड, जो डायमंड नेकलेस था उसको ट्रेजर बोलेंगे. सब 20 मिनट्स लेटर रॉकी साउटेड. जब सर्च किया गया एटलीस्ट 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट तक, तो रॉकी को ये मिला और वो चिल्लाए, साउटेड, आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे ये मिल गया है. कवर्ड इन मड वाटर लिलीज, और वो मतलब कीचड़ से ढका हुआ था. वाटर लिलीज भी थे, फॉर्न्स एंड टेड पोल्स, उसमें मेढक भी थे. वी इमर्ज्ड फ्रॉम द कैनल, और सब लोग कैनल से निकले. इमर्ज्ड मतलब बाहर निकलना, कैम आउट. एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर. अब रॉकी अंकल को मिला और वो उसको प्रेजेंट किए, मतलब देने के लिए. नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर, शॉपकीपर को जो देना था उसको ना, उसको देने के लिए. फाइनली द रिंग वाज बाउट, और अंत में अंगूठी खरीदा गया. द एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड, सगाई का डेट रखा गया. अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना, एंगेजमेंट मतलब सगाई. एंड अ डेट वाज सेट फॉर द वेडिंग, और विवाह का प्रस्ताव रखा गया, एक डेट अरेंज किया गया. A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother. अब वेडिंग, शादी मतलब अरेंज करने से पहले ऐसा देखा गया कि टूटू जो थी बंदरिया, वो किचन में, शी वाज हेल्पिंग ग्रैंड मदर, वो हेल्प कर रही थी. प्रिपेयर द वेडिंग केक. वेडिंग केक जो होता है ना, केक बनाने के लिए. टूटू ऑफन हेल्प्ड विद द कुकिंग, खाना बनाने में भी मदद करती थी. एंड व्हेन ग्रैंड मदर वाज नॉट लुकिंग, जब दादी माँ नहीं देखती थी, एडेड हर्ब्स, उसमें जड़ी बूटी डाल दी, ऐड कर दी. स्पाइसेस, मसाला एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स टू द पॉट, मतलब बर्तन में सब कुछ मिक्स कर देना. मतलब टूटू वाज सो मिस्चिपियस,
She added everything, so herbs, spices, and other interesting items mm, to the pots for making a cake. I am not sure exactly what went into that wedding cake when grandmother was not looking. अब आप बता सकते हैं कि जब वो जो केक बन रहा था ना, तो किसी को मतलब पता नहीं था कि वो जो वेडिंग केक लोग खाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपेंड आफ्टर दे विल ईट वेडिंग केक. बट आई डिड अ स्पॉट, लेकिन मुझे ये पता चला, टूटू स्टीयरिंग इन सम रेड चिली, कि टूटू जो था स्टीयरिंग कर रहा था, मतलब मिक्स कर रहा था, वो बंदरिया जो थी मिक्स कर रही थी, चला रही थी. टूटू स्टीयरिंग इन सम रेड चिली सॉस, चिली सॉस उसमें डाल रही थी. बिटर गॉड, मतलब करेला का जो सीड होता है उसको बिटर गॉड कहते हैं. एंड अ जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल, और अंडा का जो ऊपर वाला सेल होता है उसको भी ऐड कर दी थी. यानी कि द केक वाज डिफरेंटली कुकड, मतलब जो केक जो था वो उसका टेस्ट ही डिफरेंट था. इट इज ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट वे आर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज. अब आप जान सकते हैं कि अनेकों दिन तक कोई मेहमान भी नहीं आए थे देखने के लिए. वी आर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग, मतलब विवाह होने के बाद. बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक, लेकिन कोई केक के बारे में कंप्लेन नहीं किया ना. मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, और सब लोग ये कह रहे थे कि जो केक बना था दैट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इट हैड ग्रेट फ्लेवर, उसमें डिफरेंट टाइप का फ्लेवर था. तो नाउ आई थिंक दैट योर स्टोरी वाज गोइंग टू बी फिनिश. नाउ come, I will explain you the moral teaching of this story. Okay, and I will also explain about the writer.